to your channel for creative studies. So today we will be looking on to the paper BEGS 183, that is writing and study skills, and we will be doing a paper analysis for this course. And this is of 2 hours paper, which is of 50 marks, which that has been already come in December 2022 exam, 2021 exam that was conducted in March, and in June 2022 as well. So two sessions had this paper earlier. So I have already done the first paper analysis. If you have not seen it, please do see it so that you can get a better view of where the questions have come from. Okay, so we will start from the first question. That if you see, there are some notes. There is some notes that all questions are compulsory. So this is, since this is a 50 marks paper, so there are the instructions for the first question is answer any three. If you see here, answer any three of the following in around 100 words. So you have to be very quick in answering this because this is just 100 words. So roughly around just a brief intro or just a few lines would be enough to explain it. Or rather, if you say half a page or maximum 1 page, not more than that. Half a page, 100 words is not more than half a page. So half a page will be okay for this answer. Okay, so the first question goes on with, what do you understand by the term synthesizing? How does synthesizing become an important step in the process of writing? Okay, first of all, if we see synthesizing, what is synthesizing? First we will see the definition and then we will go on to the whole answer. So here it is, synthesizing means integrating your own ideas with information learned from other sources. Say suppose you have learned a particular thing from a book, you also take reference from the internet or through other social media platforms, say suppose YouTube, and then you write it in a write it or speak a particular information in a particular synthesized manner, so that you integrate your own ideas with the information learned from other sources. Okay, this is synthesizing, and this you will find the basic definition of synthesizing is from page 6. Okay, we'll discuss about synthesizing in length, what is synthesizing and what the question actually asked. As you can see here, 1.3.1 subcontext 1.3.1, that is block 1, unit 1, subcontext 1.3.1. Here, synthesizing as a writing strategy. What is synthesizing? Synthesizing involves presenting facts, ideas, and information taken from various sources, as I have told earlier, and suggesting ways in which these sources have a relationship. For example, facts taken from a particular article could be extended in another book, or you may find arguments in one research paper which are contradicted in another source. So you have to tally the thing. Okay. In fact, as Alex Rod and Cooper in 2012 very secondly say, when you synthesize material from different sources, you construct a conversation among your sources, a conversation in which you also participate. So you are linking the amount of sources that you are gathering. Okay, so gathering is an important term and it's an important thing. So you are gathering the resource and then you're linking it. Okay, so uh, here you see that there is it's like a, according to Alex Rod and Cooper, that when you synthesize a material from different sources, you construct a conversation among your sources and in which you also participate. So synthesizing is an important step in the process of writing on any topic, especially if you are using multiple resources. You gathered the information and you rather write on that particular topic. In order to create an effective synthesis, you must read the all material you have collected, albeit superficially, and then focus on the source you have chosen as most appropriate for your topic. जो आपके लिए सबसे बेस्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसको रेफर करने के बाद उसको आप फाइनल आपका जो है वो उसको आप देखोगे. ठीक है, इफ यू आर बेसिंग योर असाइनमेंट ऑन मल्टीपल सोर्स सिंथेसिस, you need to pick up relevant arguments or facts from these different articles or books, and perhaps a quotation or two as well to illustrate your points. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे सिंथेसाइजिंग को यूज़ किया जाता है. ठीक है, दिस इज ऑन पेज 10 of block 1 unit 1. Okay, so as you can see that I have discussed about two things. What do you understand by the term synthesizing? That was the first definition that I talked about. And
how does synthesizing become an important step in the process of writing? Two parts I have discussed. Okay. Next is, how is expository writing different from argumentative writing? Okay. Give examples of both. This is very important question, and this is relatable to many courses like this expository writing, argumentative writing. Okay. Here they have asked two. They might ask any other of the total five, that is expository writing, persuasive writing, narrative writing, argumentative writing. Okay. And descriptive writing. Five writings are there. You have to see it so that you can carry it forward with the other courses as well, because this thing is very important, and this actually defines how a particular thing is written or spoken. Okay. So how is expository writing different from argumentative writing? Give examples of both. Now if you see here, this is in, if you see, this is unit 3. Okay. Block 1, unit 3. So this is from block 2, unit 3. Okay. This is block 2, unit 3, not block 1, unit 3. Block 2, unit 3. So they have asked two questions from here, that is expository composition and argumentative composition. Okay. So we will look on to these two things. Okay. Now types of composition, as you see here, that what are the different types of composition. So here they have asked this. Okay. So what do you think is an expository composition? In simple terms, it means to writing to explain, this is first point, inform, clarify, or persuade the reader. Okay. Let's uh, get it circled. Okay. So what are the things that are there in here? To inform, clarify, or persuade the reader. The paragraphs are organized in a coherent manner to help the readers understand the topic and provide factual information. It is usually written in a direct manner where you state the theme first and then your views. So what are the main points here? That you explain in this type of composition, you explain, inform, clarify, or persuade the reader. Okay. The paragraphs are organized in a coherent manner or to help the readers understand the topic and provide factual information. इसमें आपको information दिया जाता है. It is usually written in a direct manner where you state the theme first and then your views. ठीक है. तो हर एक एक्सपोजिशन में अगर आप देखोगे, इफ़ यू हैव गिवन द बेगला 138 पेपर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन, वहाँ पर भी वो पेपर दिया गया है. अगर आपका वो एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक, तो यू डू सी द पेपर एज वेल, हाउ यू राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन. ओके. तो उसके बारे में भी अगर आप देखोगे, अगर एक पैसेज का ना एक फॉर्मेट होता है, जैसे जब आप कोई कॉम्प्रीहेंशन करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन में यू सी द पैटर्न ऑफ इट. ठीक है. जहां पर एक पैटर्न का पर्टिकुलर चीज में आप चीज को क्लैरिफाई करते हो. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. जहां यहाँ पर एग्जाम्पल भी मांगा है, तो इट विल बी गोइंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम हियर एज वेल. तो एग्जाम्पल विल बी फ्रॉम हियर. ठीक है. जहां एग्जाम्पल क्या है? नथिंग कुड बी मोर इम्पॉर्टेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट इंडियन लैंग्वेज दैन इट्स रिलेशनशिप विथ इट्स मदर. ठीक है. तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि एक इन्फेंट का जो है ना इंडियन लैंग्वेज जो यूज होता है, ठीक है, दैन इट्स रिलेशनशिप विद इट्स मदर. तो इसके बारे में ये बताया गया. द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड of the Indian language is mentioned here, which is stated in the first line, and then information on the importance of its relationship with its mother is stated. ठीक है. आप कोई और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो, बट जस्ट एज अ बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? आर्ग्यूमेंटेटिव कॉम्पोजिशन. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. इन दिस कॉम्पोजिशन यू स्टेट रीजन्स. ठीक है. यहाँ पर फैक्ट्स रहेगा, रीजन्स रहेगा. ठीक है. डिड्यूस इंडक्शंस, इवेल्युएट एविडेंस. ठीक है. और इन्फर इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट और डिस अप्रूव योर ओपिनियन अबाउट अ टॉपिक गिवन. इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे ये आर्ग्यूमेंटेटिव कॉम्पोजिशन में, दैट इन दिस कॉम्पोजिशन यू स्टेट रीजन्स. यहाँ पर आप रीजन्स बताते हो, इंडक्शंस को डिड्यूस करते हो, इवेल्युएट एविडेंस और इन्फर इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट और डिसअप्रूव योर ओपिनियन अबाउट अ टॉपिक गिवन. टू डेवलप द आर्ग्यूमेंट यू यूज एविडेंस. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दिस इज. यू सी हियर एविडेंस. ठीक है. स्टेट इट लॉजिकली और कोहेरेंटली. ठीक है. इसका मतलब क्या है? आप फैक्ट्स प्रोवाइड करते हो, आप उस पर इंफॉर्मेशन देते हो. ठीक है. वहां पर आपका डेटा होता है.
जैसे मैंने बताया कि इफ़ यू वांट टू सी द एग्जांपल्स, लाइक मैंने ऑलरेडी बेगला 138 का एक पेपर मैंने एनालिसिस किया है, जस्ट द स्टार्टिंग 5 और 6 मिनट्स में उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही इसके ऊपर में है। तो उसका अगर आप देखोगे ना कैसा टाइप का वहाँ पर है, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ एन आर्गुमेंटेटिव एंड पर्सुएसिव टेक्स्ट, ठीक है? तो वहाँ पर से आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है? तो ये है कि एक एविडेंस प्रोवाइड करता है, एक लॉजिकली, एक कोहेरेंटली वो चीज़ को आपका एक एविडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है? सो एग्जाम्पल क्या है? इवन दो इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर पीपल टू बी वेल इम्यूनाइज्ड, हेल्दी इंडिविजुअल्स आर अनविलिंग टू पे मच फॉर वैक्सीन्स, ठीक है? तो अगर यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट दिया गया है, टू राइट एन आर्ग्यूमेंटेटिव कॉम्पोजिशन अबाउट दिस you will have to state whether you support this statement or not, why do you support it or not, and the reasons for supporting or not supporting it with evidence. Here you will argue about your opinion and try to persuade the reader of your opinion, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप देखोगे, दिस इज इन ब्लॉक 2 यूनिट 3, सब कॉन्टेक्स्ट 3.2.1 और 3.2.2 का पूछा गया था। दे माइट आस्क अदर थिंग्स एज वेल, नरेटिव कंपोजिशन, डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन, ये क्या है इसको अभी आपको बोल सकते हो, ठीक है? बट मेन जो चीज़ है ये दो आया था, ठीक है? पेज नंबर 42 एंड 43 यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है? ब्लॉक 2 यूनिट 3। नेक्स्ट वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ यू विल बी आंसरिंग. What aspects should be kept in mind to ensure coherence and cohesion while writing a paragraph? This is very important and one of the important aspects of how a paragraph is written in a systematic way. If you see, it is the second part of it, block 2 unit 2, that is developing the topic. Then after that is only there coherence and cohesion. Okay, 2.2.1 and 2.2.2. Okay, now let's go on to the question that is asked. Okay, coherence and cohesion. Here it is, coherence. What is a coherence? Now when you look at different paragraphs, जब आप paragraphs को देखते हो, each paragraph is developed slightly depending upon the information that you want to convey to the reader. ठीक है, हर एक पैराग्राफ में एक इंफॉर्मेशन रहता है जो आप रीडर को कन्वे करना चाहते हो. Moreover, when you write a paragraph of your own, choose the topic and write down all the points that you know about the topic as you make your list. Do not stop to question whether a detail fits or not. Any of the points that you do not fit can be removed later. अगर कोई point नहीं fit होता है तो आप बाद में उसको remove कर सकते हैं. This will help you generate new ideas and also give you something concrete to work on. However, when you start writing, see that every sentence contributes to the central idea. ठीक है, what they have said, central idea, okay, and which is contained in the topic sentence. Only when then your paragraph will have unity. मेन चीज क्या है, कोहेरेंस का मतलब यूनिटी, एक पैराग्राफ में एक यूनिटी है, ठीक है? ऑल्सो टू हैव यूनिटी इन योर पैराग्राफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अदर than the topic sentences and supporting details, the sentences which support the topic sentence, it could be coherent. In a coherent paragraph, you as a writer take the reader logically and smoothly from one idea to the next. The reader must clearly recognize the sentence logically leads to the next. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक लिंक है. सपोज आपको मैं इसी के एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ. देखिए यहाँ पर दो पैराग्राफ्स है, ठीक है? एग्जाम्पल आपको मिलेगा, यहीं से मैं इसको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर कोहेरेंस के बारे में एक पैसेज दिया गया है, ठीक है? एज यू कैन सी हियर पैराग्राफ 1, ठीक है, एंड दिस इज पैराग्राफ 2, ठीक है? ये दो पैराग्राफ आपका है. आप अगर देख रहे हो यहाँ पर कोहेरेंस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? ये दो जो पैराग्राफ है इसमें एक यूनिटी है, ठीक है? ये जो इसका टॉपिक है, ऑल्दो इसका जो ब्रेक हुआ है, मतलब पैराग्राफ ब्रेक हुआ है, इसके दोनों टॉपिक के बारे में एक यूनिटी है, एक सेम कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है, ठीक है? तो एक कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ के बीच में ना एक टॉपिक का चीज है. अगर कोई भी आप पैसेज लिख रहे हो तो आप सडनली, मैं आपको एक और एक एग्जांपल देता हूँ. से सपोज यू आर राइटिंग ऑन ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस में जब आप एक्सप्लेन करोगे तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताओगे, कैसे करके वो होता था, क्या मीडियम था, फिर कौन से टाइम में होता था, ठीक है? अब अगर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप लिखोगे तो उसके बाद आप सडनली ऑनलाइन क्लासेस के बाद आप पॉलिटिकल एरियाज पे तो नहीं जाओगे ना. ऑफकोर्स द कॉन्टेक्स्ट विल बी ऑन ऑनलाइन क्लासेस ओनली. तो एक कॉन्टेक्स्ट का जो है उसमें एक यूनिटी रहता है, मतलब एक लिंक है पैराग्राफ्स में,
ऑल्दो उसका पैराग्राफ ब्रेक होता है। तो ये है कोहेरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 2.2.2 में, ये आपका पेज 17 में आपको मिल जाएगा, ब्लॉक 2 यूनिट 2 में। ठीक है, अब कोहेशन क्या है देखिए, अनदर टेक्निक विच ब्रिंग्स अबाउट कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ इज द यूज ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिएगा, कोहेसिव डिवाइसेस क्या है। कोहेसिव डिवाइसेस इज समथिंग और सिग्नल वर्ड्स और साइन पोस्ट्स। बहुत टाइम में ये चीज़ भी नाम चेंज कर के भी बहुत टाइम दे सकता है, सिग्नल राइट अबाउट साइन पोस्ट और सिग्नल वर्ड्स, तो ये आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। between sentences or at all the beginning of the sentences, मतलब or at the beginning of the sentences, these words or phrases will help you as a writer to move smoothly from one sentence to the next and show logical relationship between sentences. It is explained in the example below. अब यहाँ पर एग्जाम्पल में जब आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, क्या है कि एक लॉजिकली एक चीज में मूव करते हो, तो एक पैराग्राफ पे जब आप फर्स्टली यूज करते हो, ठीक है, फिर सेकेंडली यूज करते हो। ठीक है, लेट्स गेट दिस मार्कर हियर, ये वाला चाहिए मेरे को। ठीक है, तो फर्स्ट आप यूज़ कर रहे हो, फिर मोस्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फिर सेकेंडली आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फिर मोर ओवर आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये आपका एक्सप्लेन करता है कोहेशन को, मतलब साइन पोस्ट या सिग्नल वर्ड्स को। ठीक है, ये सिग्नल वर्ड्स या साइन पोस्ट जो है, ये चीज़ को एक चीज़ को आपको ऐड करने देता है, पाइल अप इंफॉर्मेशन करने देता है। ठीक है, तो यू कैन ऐड द इंफॉर्मेशन इन बिटवीन द पैराग्राफ्स। ये क्या होता है, इससे एक बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेज में यू ट्राई टू गिव इट इन अ काइंड ऑफ अ लॉजिकल रिलेशनशिप। यहाँ पर जो की वर्ड यहाँ पर है, इट फॉर्म्स लाइक टू शो अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस। ये पैराग्राफ में एक साइन पोस्ट या एक सिग्नल वर्ड्स की तरह होता है, टू अ लार्ज एक्सटेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, थस, ठीक है, सिमिलरली, ये सब चीज में आपका ये सेंटेंस को एक सिग्नल वर्ड्स या साइन पोस्ट कहते हैं, या हम लोग इसको और एक में कोहेशन भी कहते हैं। तो ये पैराग्राफ में क्या है ना, कि ये कनेक्शन टाइप का, एक कोहेरेंस क्या था, हम लोग देखे थे कि इसका एक यूनिटी रहता है या एक सेंस ऑफ लिंकिंग रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सिग्नल वर्ड्स या साइन पोस्ट है जो कि कोहेशन है, जो कि एक कोहेसिव डिवाइसेस से वो यूज होता है। ठीक है, तो ये था कोहेशन एंड कोहेरेंस। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, आप फिर से एक बार देख लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर writing when you're writing these type of papers. Okay, and also one of the important messages that I want to tell you during this paper solving is that please do see the assignment questions. It is very important for your exam perspective, because if you see, half of the paper is like 25 marks of the paper is seen and half of the paper is unseen. Okay, mostly there is lettered, if you see here in this, there is lettered composition, and there is a form of report as well, and lastly there is a passage which you have to write it on your own. Okay, इसका एक अगर आप देखोगे समरी करना होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, so that we can go on with the analysis and carry it forward. What are the three major types of study skills? ठीक है, okay, so if you see, this is in block 3 unit 1. Okay, what are the three major study skills? Okay, so this is very important, और ये आपके दोनों almost like 2 times it has come in the paper, like दिसंबर का जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी स्टडी स्किल्स पूछा गया था, ये जून के पेपर में भी पूछा गया है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपका बहुत सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, एंड इफ यू सी हियर दैट व्हाट आर द स्किल्स, स्टडी स्किल्स, इन फैक्ट देयर आर 3 स्टडी स्किल्स इफ यू सी, एंड which are gathering skills, that is perception or comprehension, then there is storing skills, that is retention, and the third one is retrieval skills or retrieval. गैदरिंग स्किल्स का मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट में है, आपको देखना पड़ेगा 100 वर्ड्स ही है, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन इट। अगर ये लॉन्ग आंसर होता तो आप थोड़ा ज़्यादा दे सकते थे, बट इतना आपको नहीं देना है, आपको बहुत छोटा करके देना है, तो आपको जस्ट डिफाइन करना है, 3 को आपको देना ही है, क्योंकि स्टडी स्किल्स पूछा गया है, तो तीनों आपको एक्सप्लेन करना है छोटा करके। ठीक है, तो आप मेन क्या चीज़ कीजिएगा, अगर ऐसा टाइप का मतलब वर्ड लिमिटेड होता है, तो यू जस्ट गिव द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट। सो गैदरिंग स्किल्स क्या होता है कि these skills enable learners to identify and locate relevant information. These skills include reference skills, sub skills, reading, visually scanning, skimming, ये सब। ठीक है, together they equip the learner with the tools to find
sources of the information. Reference skills can be further subdivided according to the material to be consulted into the following. ठीक है, यूज ऑफ डिक्शनरी, यूज ऑफ लाइब्रेरी, जहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, सिंपल। ठीक है, ये आपका पेज 5 में मिल जाएगा, ब्लॉक 3 यूनिट 1। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर स्किमिंग स्कैनिंग भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो है स्किमिंग स्कैनिंग। तो आप लोग को पता ही होगा कि स्किमिंग स्कैनिंग क्या है। स्किमिंग स्कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीन कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम बेगला 138 एज वेल। सो स्किमिंग स्कैनिंग क्या है, स्किमिंग आप जल्दी से आप रीड करते हो, ठीक है, स्पीडली आप रीड करते हो जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और स्कैन आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, मतलब सिलेक्टिव रीडिंग जब आप करते हो, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप खोज रहे हो, जैसे मैं अभी स्कैनिंग कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं खोज रहा हूँ, ठीक है, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ स्कैनिंग। तो मैं छोटे से मैं ये समझा दिया, ये आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, स्टोरेज स्किल्स। जो स्टोरेज स्किल्स जो है वो सेकंड पार्ट है। स्टोरेज स्किल्स क्या मतलब क्या है कि वो कोई चीज़ आपको स्टोर करते हो, स्टोरेज मतलब स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज जो है ये आप कैसे करके स्टोर करते हो। इसका जो मेन टू पार्ट्स है ये है नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जहाँ पर आप क्या स्टोर करते हो, इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो। तो यहाँ पर आप जब क्लास में होते हो, जब आप क्लास में होते हो तो ये नोट टेकिंग करते हो, और जब आप लाइब्रेरी या एट होम में होते हो तो नोट मेकिंग करते हो। तो अगर आप देखोगे नोट टेकिंग में क्या होता है, जल्दी जल्दी जब आप क्लास लेते हो, अभी क्लास लिए होगे तो आप देखे होगे कि यू हैव टू टेक द नोट्स, ठीक है, जहाँ पर आप पॉइंट्स बना के आप, कोई एक स्टूडेंट क्या करता है इन फ्रंट, मतलब वो टाइम में एक टीचर प्रेजेंट होता है, एंड यू गेट द नोट्स डाउन, ओके, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास व्हेन यू आर टेकिंग ऑन, ठीक है। उसके बाद नोट मेकिंग में क्या होता है, नोट मेकिंग में यू प्रिपेयर इट ऑन योर सेल्फ, उसमें किसी और का हेल्प नहीं होता है, यू प्रिपेयर इट ऑन योर सेल्फ, और वो आपका फ्री टाइम में, जब भी लेजर टाइम में होता है, आप ये क्या करते हो, जाहिर जब आप बुक रीड करते हो, जैसे एग्जाम के टाइम में, या जब आप कोई भी बुक बना रहे हो, शायद असाइनमेंट के टाइम में, ठीक है, यू आर मेकिंग असाइनमेंट्स, ये आपका नोट मेकिंग के टाइम में, आप अलग से अगर कोई चीज़ में नोट लिख के आप कर रहे हो तो ये नोट मेकिंग में आता है। नेक्स्ट है क्या, रिट्रीवल स्किल्स, ठीक है। रिट्रीवल स्किल्स अगर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई भी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड पार्ट जो है, क्योंकि ये स्टडी स्किल्स के बारे में बताया गया है, तो यू हैव टू मेंशन 3 ऑफ देम, जस्ट बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि ये 100 वर्ड्स का था। अगर ये ज़्यादा होगा, सबसे सपोज 10 वर्ड्स का, मतलब 10 मार्क्स का, तो फिर आप क्या कीजिएगा, 10 मार्क्स का होगा तो थोड़ा ज़्यादा वर्ड लिमिट रहेगा, लाइक 300 वर्ड्स या 250 वर्ड्स का रहेगा, तो यू हैव टू गिव इट इन अ मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर, ठीक है। तो रिट्रीवल स्किल्स क्या है, वाइल राइटिंग एन एग्जामिनेशन और पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, स्टूडेंट्स नीड टू summarize their ideas in a coherent form so that their readers can understand them, or sometimes they have to prepare a research abstract based on their reading। तो ये क्या है, जब आप एग्जाम में दे रहे हो तो आप रिट्रीव कर रहे हो, मतलब आप चीज़ को फिर से क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को फिर से रिकलेक्ट कर रहे हो कि क्या मैंने गैदर किया है, क्या मैंने स्टोर किया। ये आपका थर्ड प्रोसेस होता है, जब आप पहले एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, फिर आप एक चीज़ को स्टोर करते हो अपने दिमाग में, या जब आप नोट मेकिंग से उसको लर्न करके स्टोर करते हो, याद करके उसको समझने की कोशिश करते हो, उसके बाद आप रिट्रीव करने की कोशिश करते हो, जब एग्जाम में या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई भी सेमिनार में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं या उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक रिट्रीवल स्किल्स कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका पेज 17 में है। तो अगर आप देखोगे ब्लॉक जो 3 यूनिट 1 में है, इसमें आपको 3 स्टडी स्किल्स मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ये कॉमन आया है एग्जाम में, ठीक है। अगर आप देखोगे, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अराउंड 200 वर्ड्स। अब 200 वर्ड्स है, क्योंकि वो 100 वर्ड्स था तो ये थोड़ा बहुत छोटा है, ये लाइक 10 मार्क्स का है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज यू वुड अडॉप्ट टू बिकम अ क्रिटिकल रीडर, डिस्क्राइब कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड। अब यहाँ पर क्या है कि स्ट्रैटेजीज यू अडॉप्ट टू बिकम अ क्रिटिकल रीडर और डिस्क्राइब द कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड, 2 ऑप्शन है, मैं दोनों दिखाऊंगा क्योंकि ये आपका दोनों पार्ट में होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये ब्लॉक 1 यूनिट 1 में है, सब कॉन्टेक्स्ट 1.2.1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक्सेल रॉड एंड कूपर का 2012 में ये अडेप्टेशन है, जहाँ पर क्रिटिकल रीडर को कैसे प्ले करता है व्हेन यू प्ले अ रोल ऑफ अ क्रिटिकल राइटर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग क्रिटिकल एज अ राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना, ये 2 पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट लाइक दिसंबर 2020 वन का जो क्वेश्चन था, फर्स्ट सेट ऑफ BGS 183, वहाँ पर भी कॉमन था, तो आप ज़रूर से देख लेना रीडिंग क्रिटिकली। और आपका
स्टडी स्किल्स, ये दो क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुआ था 2 टाइम्स में, ठीक है। तो इसको आप एक बार रीड करके समझ लेना। तो व्हाट आर दीज पॉइंट्स, देयर आर टोटल 11 पॉइंट्स इन हियर। अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, एनोटेटिंग, ठीक है। एनोटेटिंग, टेकिंग इन्वेंट्री, आउटलाइनिंग, समराइजिंग, सिंथेसाइजिंग, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, explaining the significance of a figurative language, reflecting on challenge to our beliefs and values, evaluating the topic of an argument, recognizing emotional manipulation and judging the writer's credibility. अब यहाँ पर क्या है कि एनोटेटिंग में आप क्या करते हो, जब आप टेक्स्ट को रीड करते हो या इंटरप्रेट करते हो, तो वहाँ पर क्या है कि क्वेश्चंस एज यू रीड अलोंग, दीज आर नोट्स यू राइट एज यू रीड अलोंग। मतलब यहाँ पर साइड में जब मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, या जून इसमें यहाँ पर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एनोटेट करते हो, मतलब इसमें आप साइड में कुछ लिख रहे हो, ठीक है। टेकिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है, लिस्टिंग एंड ग्रुपिंग योर एनोटेशन सो दैट यू फाइंड मीनिंगफुल पैटर्न्स। मतलब उसका जो है कि एक लिस्ट करके आप कर लिए एक जगह पे कि क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ा है या क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। दिस वुड रिक्वायर looking for repetition such as recurring images, stylistic features such as repeated words or phrases, repeated examples or illustrations. These patterns may reveal something about the reading text. इसका जो रीडिंग टेक्स्ट है इसके बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। फिर आउटलाइनिंग क्या है कि ये टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स है उसके बारे में एक मेन जो आइडियाज है, एक जिस्ट आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। लिस्टिंग द टेक्स्ट मेन आइडियाज और द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट एज वेल एज इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स। फिर समराइजिंग क्या है, जब आप जो मेन आइडियाज का है आप उसको समराइज करते हो। समराइजिंग का प्रेसिज समरी और पैराफ्रेज इसके ऊपर में भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से देख लीजिएगा इस बार के लिए। समराइजिंग क्या है कि आप कोई चीज़ को समराइज कर रहे हो कि वो क्या है, ठीक है, उस चीज़ को आप बता रहे हो अपने वर्ड में, उसको समराइजिंग बोले जाता है, ठीक है। फिर सिंथेसाइजिंग क्या है, सिंथेसाइजिंग तो हम लोग पहले भी देखे थे, इंटीग्रेटिंग योर ओन आइडियाज विद द इंफॉर्मेशन लर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज से आप सिंथेसाइज कर रहे हो। फिर क्या है, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, प्लेसिंग द रीडिंग टेक्स्ट इन इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड आस्किंग वेदर इट वुड बी यूजफुल फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो आप रीड करके कोई पर्टिकुलर हिस्टोरिकल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आप उसको देख रहे हो कि वो मेरे लिए ज़रूरतमंद है कि नहीं, या वो जो चीज़ है वो चीज़ कॉन्टेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करना, ठीक है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज जो है, जैसे दिस इज व्हेन यू एग्जामिन हाउ मेटाफर्स, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन एंड अदर सच लिटरेरी डिवाइसेस जो है आर यूज इन अ टेक्स्ट टू कन्वे मीनिंग एंड इवोक फीलिंग। तो ये जो है कैस कौन सा चीज़ क्यों यूज़ हुआ है इसके बारे में आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कहाँ क्यों यूज़ हुआ है। फिर क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द चैलेंजेस to our beliefs and values. This refers to texts which may contradict some of our core ideas and beliefs. हम लोग जो पहले हम लोग जानते हैं या हम लोग के जो कोर आइडियाज और बिलीफ्स है उसको हम लोग को कभी कभी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा या उस चीज़ को समझना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग दिस इट वुड बी अ गुड आइडिया टू थिंक अगेन अबाउट योर आइडियाज एंड बिलीफ सिस्टम। इसमें क्या है कि हम लोग बहुत सारे टाइम में व्हेन वी आर रीडिंग समथिंग, समटाइम्स वी लर्न समथिंग न्यू, समटाइम्स वी might oppose the thing, but as it said, a particular text has many opinions, many values, many contradictions as well. तो इसमें आप कोई चीज़ को चैलेंज नहीं करके उसको एक लाइक यू कैन लुक इट इनटू अ पर्टिकुलर फ्रेम। फिर क्या है, evaluating the topic of an argument. This entails understanding whether the argument presented by the writer is well reasoned and adequately supported. इसमें आप क्या करते हो कि आप अंडरस्टैंड करते हो कि आर्ग्यूमेंट जो राइटर ने दिया है वो सही से ठीक ठाक से वो वेल रीजनड है कि नहीं, या एडिक्वेटली सपोर्टेड है कि नहीं। उसमें आप बोल सकते हो कि ये जो है कि कैसे करके राइटर किया है। फिर क्या है, रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल मैनिपुलेशन। दिस इज बीन अवेयर वेदर द टेक्स्ट इज अनफेयरली मैनिपुलेटिंग यू बेस्ड ऑन फॉल्स और एग्जैजुरेटेड क्लेम्स। मतलब ये जो क्रिटिकल रीडिंग का है ना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को खुद में भी ना एक बोलते हैं ना कि क्रिटिकल रीडर का क्या है कि बीइंग जुडिशियस ऑफ नोइंग व्हाट इज रिटन, ठीक है। आप एक चीज़ को पढ़ते हो बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ को आप बिना देखे या बिना फैक्ट को चेक किए ही आप करोगे, आप उस चीज़ को क्रॉस चेक करोगे, ठीक है। क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखोगे क्रिटिकल रीडिंग का मतलब यही है कि वो एनालाइज द पर्टिकुलर थिंग इन अ मोर एनालिटिकल वे। उस चीज़ को आप समझोगे कि कैसे क्या चीज़ को बोला गया है, ठीक है। फिर क्या है, जजिंग द राइटर्स क्रेडिबिलिटी। दिस मीन्स आइडेंटिफाइंग वेदर द राइटर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एंड हैज सैटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट ही और शी इज राइटिंग अबाउट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो जो दिया है वो कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है,
इसके बारे में ये बताया गया है। दिस इज अडेप्टेड फ्रॉम एलेक्स रॉड एंड कूपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जब आप लिखते हो ऐसे टाइप के आंसर को तो मेन ये चीज़ को भी आप बता सकते हो कि एलेक्स रॉड और कूपर से ये जो 2012 में है ये चीज़ का इंपॉर्टेंट है। तो इस बार के लिए आप थिंकिंग क्रिटिकली एज अ राइटर भी आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन में है उसका जो सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड, ठीक है। कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड एक टेक्निक है, ठीक है। और ये क्या है कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड? इट इज अ सिस्टम ऑफ टेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिव्यूइंग नोट्स विच वाज डिवाइज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर वॉल्टर पॉक, ठीक है, वॉल्टर पॉक ऑफ कॉर्नल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो प्रोफेसर वॉल्टर से ये लिया गया है, ठीक है। तो वो कॉर्नल यूनिवर्सिटी के थे, ठीक है। तो फ्रॉम कॉर्नल यूनिवर्सिटी से तो था, तो इसीलिए वो नाम था कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड, मतलब वो यूज कहाँ हुआ था उसके ऊपर में ही बताया गया है। तो प्रोफेसर वॉल्टर पॉक का ये था। और दिस मेथड रिक्वायर्स वेरी लिटिल प्रिपरेशन, नो टेबल्स और डायग्राम्स, व्हिच मेक्स इट आइडियल फॉर नोट टेकिंग ड्यूरिंग लेक्चर। दिस नोट स्टेक्स कैन बी, दिस नोट्स पेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3-4 डिफरेंट सेक्शंस। तो इसमें क्या है कि ये ऐसे ही कुछ आप थोड़ा बहुत यूज कर लेना, टाइटल, डेट, कीवर्ड, ड्यूरिंग क्लास नोट्स आप जब क्लास में लेते हो, क्वेश्चंस दैट कनेक्ट पॉइंट्स, डायग्राम, स्टडी पॉइंट, समरी। बहुत छोटा ही प्रिपरेशन है, इसमें ज़्यादा टेबल्स या डायग्राम्स नहीं यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके ब्लॉक 3 यूनिट 2 में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, दैट इज 2.7 के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, पेज 34 एंड 35। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टाइम बहुत कम लगता है। और अकॉर्डिंग टू दीज 5 आवर्स ऑफ नोट टेकिंग, यहाँ पर फर्दर ऑन क्या डिस्क्राइब किया है, रिकॉर्ड, रिड्यूस, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राइट ऑल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल है कि नहीं वो बताना है, यूजिंग अब्रीविएशंस एंड शॉर्टनिंग डिवाइसेस, जो आपका अब्रीविएशन है या शॉर्टनिंग डिवाइसेस है उसके बारे में आपको बताना है। आफ्टर द लेक्चर राइट अ समरी ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स यूजिंग की वर्ड्स और क्यू वर्ड्स, ठीक है। फिर डिसाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स विदाउट लुकिंग एट द नोट्स। फिर रिफ्लेक्ट, थिंक अबाउट योर ओन ओपिनियंस एंड आइडियाज, रेज क्वेश्चंस और रिव्यू बिफोर द नेक्स्ट क्लास, टेक 10 मिनट्स टू रिव्यू योर प्रीवियस नोट्स, जो कि यहाँ पर बताया गया है, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर और भी क्वेश्चंस है, जैसे यहाँ पर एक वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन है जो कि आप जानते हो कि कैसे करके कैसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, स्टेप्स टू बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन योर नेबरहुड्स। इसके बारे में पैसेज राइटिंग जैसे कॉम्पोजिशन आप देखे थे, वैसे ही कैसे करके आप कॉम्पोजिशन लिखोगे इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये जस्ट एक टेस्टिंग है कि आप क्या सीखे हो, कैसे सीखे हो। इसको पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है और ये ज़्यादा आपका वर्ड लिमिट तो नहीं दिया गया है, बट सपोजिटली यू राइट इट अराउंड 1 पेज, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आप लेंथ को एक्सटेंड मत कर देना, ठीक है। 1-1.5, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, 2 आवर्स का ही पेपर है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन राइटिंग द वर्ड्स, ठीक है। मिनिमम 1 पेज लिखने से भी चलेगा, ठीक है। फिर क्या है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग दैट द लाइब्रेरी फैसिलिटीज ऑन योर कैंपस मे बी प्रोवाइडेड एंड अपडेटेड। इसमें आप क्या बताओगे कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ में से सपोज आप कोई कॉलेज में हो, उस पर आप बताना कि क्या है कि आपके जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ में आपको कुछ बुक्स चाहिए, या आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए, या इंटरनेट एक्सेस है तो उसमें कुछ और भी मतलब ई बुक्स चाहिए, या कुछ रिसर्च मटेरियल्स चाहिए, इसके बारे में आप बता सकते हो। अब फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ऑलरेडी बुक में है, उसको अच्छे से देख लेना एग्जाम से पहले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर क्या है कि द इन्वायरमेंट क्लब इन योर कैंपस हैज कंडक्टेड एन अवेयरनेस कैंपेन टू इंश्योर दैट ओनली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है कि जो बहुत अच्छे से डिकम्पोज कर जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगते, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे वुड हुआ, ठीक है, वैसे ही जो मतलब जो ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं डिकम्पोज होने में। फिर वेजिटेबल पील्स हुआ, ठीक है, आर यूज इन द कैंटीन। राइट अ रिपोर्ट ऑन दिस कैंपेन। तो इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट फॉर्म करना है, राइटिंग अ रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, और ये हर साल ऐसे ही लगभग 2 ईयर से द सेम पैटर्न हैज़ कम। तो रिपोर्ट का राइटिंग का एक बार फॉर्मेट आप लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये अनसीन रहेगा, तो जस्ट सी द फॉर्मेट, इट इज़ देयर इन द बुक। अगर नहीं है तो यू जस्ट सर्फ इट आउट एंड फाइंड द पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक पैसेज दिया गया है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में। लास्ट टाइम कुछ और दिया गया था, दैट वाज ऑन, इफ़ यू रिमेंबर, दैट वाज ऑन डिजीजेस, जो कि बैंस 184 के कोर्स के ऊपर में था। ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में है, तो ये दिस इज़ रिलेटेड टू ईवीएस, ठीक है। आपके कोर्स के मटेरियल से रिलेटेड ही सारे पैसेजेस रहते हैं ज़्यादातर, या आप अगर देखोगे एक पर्टिकुलर पैसेज के ऊपर में ना एक कंसर्निंग वे होता है, तो बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है।
ये अनसीन रहेगा। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ है टॉपिक सेंटेंस क्या है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। समरी आपको इसको डिड्यूस कैसे करना है, इसको आपको डिड्यूस करना है अपने आप के वर्ड्स में, ठीक है। 75 वर्ड्स में ही लिखना है समरी को। और आपको गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। तो टाइटल आप कैसे दोगे, मैं पहले 3 और 2 डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो समरी आप 75 वर्ड्स में इस 3 पैराग्राफ में से थोड़ा थोड़ा करके आप खुद के वर्ड्स में आप समरी दोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर टाइटल देना है। तो टाइटल आप यहाँ से दे देना कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, तो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप बोल सकते हो कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या द फीचर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऐसे करके कुछ एक टाइटल दे देना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन, ठीक है। ये भी आपको वहाँ से रहेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़, टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर से देख लेना। मैं आपको पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ, वो देख लेना, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ब्लॉक 2 यूनिट 2 में व्हाट इज अ पैराग्राफ के नीचे में यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पार्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर से देख लेना। ये 2 बार आया है और ये बार भी आने का हाई चांसेस है। टॉपिक सेंटेंस क्या है और थीसिस स्टेटमेंट क्या है, ये दो चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। ये आपको पेज 15 में मिलेगा, ब्लॉक 2 यूनिट 2, ओके फाइन। सब कॉन्टेक्स्ट 2.1 में मिलेगा। यू नो अ पैराग्राफ इज यूनिफाइड बाय सेंट्रल कंट्रोलिंग आइडिया और थीम। मतलब टॉपिक सेंटेंस क्या है कि उसको जो सेंट्रल या कंट्रोलिंग आइडिया और थीम को टॉपिक सेंटेंस बताया जा रहा है। जहां वहां पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा था, मेन चीज वो था, टॉपिक सेंटेंस उसके बारे में है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कैसे यूज होता है, ठीक है, उसके बारे में एक पर्टिकुलर सेंटेंस जो आपके पूरे पैराग्राफ को आप बात कर रहे हो, ठीक है। इट इज समटाइम्स एक्सप्रेस्ड एट सम प्लेस इन द पैराग्राफ बाय वन सेंटेंस विच इज यूजुअली कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। एक सेंटेंस होता है वो, ठीक है। यू कैन राइट द टॉपिक सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट और इवन अ प्रॉब्लम, ठीक है। द टॉपिक सेंटेंस यू कैन आइदर राइट इट इन द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ और द एंड और इवन इन द मिडिल ऑफ द पैराग्राफ। वेरी ऑफन यू फाइंड द that there may not be a topic sentence in a paragraph but it may be implied within the paragraph। मतलब मेन जो चीज़ है उसका टॉपिक सेंटेंस, मतलब उसका क्या बेसिस में वो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। जैसे वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, ठीक है। ये क्या है टॉपिक, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो टॉपिक सेंटेंस के बारे में आप देख लेना और थीसिस स्टेटमेंट को भी आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो होता है ये दो टर्म्स अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ सी दिस पेपर। इसमें अगर आप देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको बताया गया है, जैसे बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी ऑफ लाइफ, अगर आप देखोगे इसके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इसके बारे में ही ये टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई थिंक सो यू हैव लाइक द सेशन ऑफ दिस एनालिसिस। इट्स मोस्टली हाफ अनसीन हाफ सीन पेपर, 25 मार्क्स का सीन पेपर है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। Please study your assignments properly. And if you like the video, then please like, share, and subscribe. Thank you so much. Take care.